Hello friends, welcome to my YouTube channel, Civil Prashna. Here I will provide previous year topic-wise updates for all subjects of civil engineering. Our goal is to solve and discuss most of the questions asked so far in exams like Maharashtra JEE, CAE, SSC JEE, RRB JEE, GATE, and many other civil engineering exams. So make sure to like, share, and subscribe. Now let's start with the subject building textures and material. And today's chapter is stone. Let's see first question. Which of the following is a mineral? Basalt, granite, quartz, cyanide. So C is the correct option, quartz. Basalt, granite, cyanide are the igneous rocks. You can see that. Next question. The color of the powder mineral is called hardness, streak, cleavage, fracture. Streak is the correct option. Here. Next question. The ability of mineral to transmit light from one side to other side is known as fracture, transparency, streak, and luster. So B is the correct option. That is transparency. Transparency को ही हम बोलते हैं. Next question. Luster of a mineral does not depend on. किस पे डिपेंड नहीं करता. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे करता है. कितना रिफ्लेक्ट हुआ है ये बताता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल कितना एब्जॉर्ब हुआ है ये बताता है. ट्रांसमिटेंस ऑफ मिनरल किसी और क्या है नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस ये भी होता है. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इन्होंने पूछा है डज नॉट डिपेंड ऑन. ट्रांसमिटेंस ऑफ मिनरल पे डिपेंड नहीं करता. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. द टेंडेंसी ऑफ क्रिस्टलाइज मिनरल टू ब्रेक इन सर्टन डायरेक्शन yielding more or less smooth surface is called cleavage, fracture, hardness, or streak. So crystallized mineral to break certain direction. So cleavage is the correct option. Say A. ठीक है. Next question. Which of the following is not a common type of stone used as building material? Material as a building material कौन सा यूज नहीं होता commonly? Gypsum, granite, limestone, marble. जिप्सम एज अ बिल्डिंग मटेरियल नहीं हो सकता. वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं. और क्योंकि उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती नॉर्मली. जनरली जिप्सम विद मिनरल एंड सीमेंट रिटार्डर. ठीक है. Gypsum rock is valuable in construction industry but only as a process material like plaster and drywall, not as a direct structural stone. Its solubility in water make it unsuitable for exterior use in wet climates. ठीक है. Next question. Granite is not suitable for ordinary building purposes because it cannot be polished. It is not fireproof material. It is costly. It has less pressure strength. देखो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ग्रेनाइट इज द बेस्ट मटेरियल. सो सी क्या होता है ग्रेनाइट इज एन एक्सेलेंट बिल्डिंग मटेरियल बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, पॉलिशेबल एंड अवेलेबल इन मेनी कलर्स. तो वो फायर प्रूफ भी होता है, पॉलिश भी कर सकते हैं और प्रेशर स्ट्रेंथ भी उसकी ज्यादा होती है. हम यूज इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो ज्यादा कॉस्टली है. ठीक है, इसीलिए यूज नहीं कर पाते. नहीं तो वो एज अ देखे देखे तो वो सबसे एक्सेलेंट बिल्डिंग मटेरियल है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट स्टोन्स लाइक बिटवीन 2.5 to 3 या बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Quarters exist in two forms: normal alpha quarters and high temperature beta quarters. The transformation from alpha quarters to beta quarters takes place abruptly at approximately what degree Celsius? That is 375 degrees Celsius, 475 degrees Celsius, 575 degrees Celsius, and 675. So C is the correct option, 575 degrees Celsius. जो ये जो कैसा होता है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस ना नॉर्मली पूछे तो नहीं जाते अपने एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी अगर पूछा गया तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है. तो ये ऐसे स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस है. सो इसे ऐसे ही याद रख लो, इसको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं होती. ठीक है. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे भी और बहुत सारे वीडियो में आप भी करेंगे, लेकिन इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये ऐसा एक हाथ क्वेश्चन आ जाता है कई कबार. सो ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रेनाइट when tested according to IS 1121 part 1 1947 shall not be less than.
Specific criteria structural grainage. So it's 2.6. C is the correct option. 2.6 से कम नहीं होनी चाहिए होती है. ठीक है. Next question. A rough estimate of quantity A dynamite required in grams for blasting rock is given by. L क्या है इसमें? Length of line of least resistance in meter. So इसका जो है क्या क्या है ऑप्शन? L square by 0.008, L cube by 0.002, L square by 0.002, L cube by 0.008. So यहाँ पे L square by 0.008, हाँ, A is the correct option. क्या होता है? L square divided by 0.008. ये फॉर्मूला यूज किया जाता है क्या निकालने के लिए? क्वांटिटी ऑफ डायनामाइट रिक्वायर्ड इन ग्राम्स. ठीक है. यल किस में रहता है? मीटर में रहता है. स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद कर लो. ये नीचे का देखना देख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टोन coring is done by blasting method with a length of line least resistance of 2 meter. What is the rough estimate of ground powder required? ये अभी अभी निकाला ना आपने. क्या था वो फॉर्मूला? A is equal to L square by 0.008. L कितना दिया आपने को? 2. 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 0.008. क्या हो जाएगा? 4 तीनों 0, इधर इधर क्या आ जाएगा? 8 8 5 जा, so 500 ग्राम. So option is the correct option. ठीक है. तो अभी अभी देखा हमने फॉर्मूला, वही पुट किया, वही निकाला. नेक्स्ट क्वेश्चन. In Torres evaporation test, loss in weight is 33 ग्राम. Find the coefficient of hardness. इसमें coefficient of hardness निकालनी है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? COH coefficient of hardness is equal to 20 minus loss of weight divided by 3. So 20 minus loss of weight कितना है अपने पास? 33 divided by 3. क्या हो गया? 20 minus 11 कितना आ जाएगा? 9. So C is the correct option. क्या हुआ? C. ठीक है. क्या है यहाँ पे? C is the correct option. ये अपना loss of weight minus coefficient of hardness equal 20 minus loss of weight divided by 3. Next question. The chemically precipitated sedimentary rock is chemically precipitated granite, gypsum, quartz, marble. क्या है इसका? जिप्सम. जिप्सम को ही हम केमिकली प्रेसिपिटेट सेडिमेंटरी रॉक बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक? इग्नियस रॉक पूछा है इसमें. सो हिलाइट, मार्बल, एप्लाइट, डोलोमाइट. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एप्लाइट. और जो बाकी के जो है वो कौन कौन सा है? हिलाइट इज द मेटामॉर्फिक, मार्बल इज ऑल्सो मेटामॉर्फिक एंड डोलोमाइट इज द सेडिमेंटरी रॉक. So applied is a igneous rock. Next question. The rocks formed due to cooling of magma at relatively shallow depth from the earth's surface are called. Shallow depth पूछा है. वो कौन सा आता है? वोल्केनिक नहीं, ये सरफेस पे होता है. रेसिडुअल डिपॉजिट की बात ही नहीं चल रही. मेटामॉर्फिक रॉक ये भी बात नहीं है. हेक्साबेजल ये होता है शैलो डेप्थ पे. ठीक है. डी का करेक्ट ऑप्शन. और कौन सा होता है? एक और होता है, जैसा ये वोल्केनिक हो गया, हेक्साबेजल हो गया, और एक कौन सा होता है? प्लूटोनिक होता है. प्लूटोनिक कहाँ पे होता है? वो डीप डाउन होता है, मतलब कूल एट अ ग्रेटर डेप्थ, दैट इज 7 to 10 किलोमीटर, विच इज कोर्स ग्रेन. ग्रेनाइट, गैब्रो, आर्गन, ये इसके एग्जाम्पल है. हेक्साबेजल कूल एट शैलो डेप्थ उसके बाद में आता है. वो 1 से 5 किलोमीटर में रहता है, जो कि मीडियम ग्रेन रहता है, दैट इज टोलरेट. देन वोल्केनिक एक्सट्रूजिव रॉक बोलते हैं उसको हम, जो कि कूल एट एन सरफेस. सो वो फाइन ग्रेन होता है और ग्लासी होता है. एग्जाम्पल बसाल्ट एंड ऑब्सिडियन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्लूटोनिक रॉक आर फॉर्म एट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस. अभी अभी देखा कितना था? 7 to 10 किलोमीटर. प्लूटोनिक 7 to 10, हेक्साबेजल 1 to 5 and volcanic surface. Next question. Which of the following is a type of argillaceous rock? Argillaceous पूछा है. साइनाइट, डोलोमाइट,
लैटेराइट, नन ऑफ दो। सबको पता है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लैटेराइट। साइनाइट सिलियस है, डोलोमाइट कैलकेरियस है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको अर्जिलियसियस के बाकी भी दिए हुए हैं, स्लेट, लेटराइट, शेल, और सिलियसियस के दिखे ग्रेनाइट, बसाल्ट, कॉटजाइट, ग्नीस, साइनाइट, और कैलकेरियस कौन कौन से, लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलिशियस रॉक? अभी अभी पढ़ा हमने, कौन सा था? क्वार्टज, मार्बल, लैटेराइट, डोलोमाइट। क्वार्टज, मार्बल कौन सा था? वो कैलकेरियस था। ठीक है। मार्बल कैलकेरियस, लैटेराइट अर्जिलेसियस, डोलोमाइट कैलकेरियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कैलकेरियस रॉक? ये भी अभी भी देखा, कौन सा है इसका? देखो, स्लेट, लैटेराइट, मार्बल, स्लाइट, अभी अभी पता है, मार्बल कैलकेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेंथ इन ग्रेनाइट, स्ट्रेंथ कौन सा प्रोवाइड करता है? कौन कौन सा है? क्वार्टज, फेल्डस्पर, माइका, नन ऑफ द फोर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सल्फर और माइका भी होते हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करते हैं। क्या है? ग्रेनाइट की कंपोजिशन दी है, फेल्डस्पर्स विच 40 to 60%, which is due to cleavage, then quarters 20 to 40%, which is strongest, no cleavage. Then mica 5 to 15%, which is weak and gives cleavage. Other minerals trace. ठीक है। वैसे ये सारे के सारी कंपोजिशन है, लेकिन क्वार्टर्स क्या करता है? स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो क्या करता है अपने को? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, बिल्डिंग स्टोन की पूछा है, 50, 100, 150 एंड 200। उसके क्या होते हैं? 100। दिस द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या दिखा है? ट्रैप का कितना है? 150 से तो 189, ग्रेनाइट का 104 to 140, ग्नीस 206 to 310, स्लेट 10 72 to 10, मार्बल 72 to 140, सैंडस्टोन 55 to 110, लाइमस्टोन 40 to 90, लैटेराइट 1.8 to 3.2। मोस्टली क्रशिंग स्ट्रेंथ बिल्डिंग स्टोन का ही पूछते हैं, ओवरऑल 100 MPa वाला। ये कभी कभार आ जाता है, ठीक है, रीड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a building stone should not absorb water more than, a good building stone should not absorb water more than, कितना होता है? 5, 10, 15, 20, 20%। सो इसका होता है 5%। 5% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन। और बाकी लोगों की भी दिखी है, बाकी इसकी भी दी है, ग्रेनाइट, ट्रैप, लाइमस्टोन, पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the test to check the presence of poorly weathering calcium carbonate in sandstone is, poorly weathering calcium carbonate in sandstone, crushing strength, crystallization test, acid test, attrition test। ये कौन सी होती है? एसिड टेस्ट। कौन सी? वेदरिंग के लिए की जाती है। कौन सी? एसिड टेस्ट। क्रशिंग स्ट्रेंथ तो आपको पता है, स्ट्रेंथ के लिए होती है। फिर कौन सी है? क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। क्रिस्टलाइजेशन होती है इफ्लोरेंस एंड सब इफ्लोरेंस, पता नहीं फिर। फिर एट्रिशन होती है, दैट इज डबल एट्रिशन टू मेजर वियर रेजिस्टेंस ऑफ अ स्टोन ड्यू टू ग्राइंडिंग एक्शन, नॉट केमिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following tests are done for frost resistance to assess the durability of stain? Smith, Brad, acid crystallization। So इसका B is the correct option। Brad इसके लिए करते हैं, इसके लिए frost resist। स्मिथ किसके लिए करते हैं? स्मिथ क्या करता है? डिटेक्ट सोल्यूबिलिटी, ब्रैड करता है फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, एसिड वाला वेदरिंग कैल्शियम कार्बोनेट्स, और कौन सी थी? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन थी ड्यूरेबिलिटी अगेंस्ट सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी परफॉर्म ऑन स्टोन टू चेक देयर ड्यूरेबिलिटी? अभी अभी देखा, कौन सा था ड्यूरेबिलिटी वाला? स्मिथ टेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। परमेबिलिटी, विंड shear, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन, ये क्ले वाले होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, the aggregates are tested by alternate wetting and drying in which of the following tests? Alternate wetting, drying, वो ये वाला तो क्रशिंग नहीं होगा, एब्रेशन भी नहीं होगा, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट ही करते हैं वो, एट्रिशन तो वियर वाला। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। वेटिंग ड्राइंग वाला, ये बाकी का ये पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, stone removal from a natural rock bed is referred as melting, pouring, annealing, excavating।
उसको हम क्या कहते हैं, कोरिंग करते हैं, खोदना। Coring is the process of extraction stone from natural rocks, that is quarries. Next question. Which of the following is a method adopted for pouring hard stone having no fissures or crack? जहाँ पे क्रैक वगैरह नहीं होती, कौन कौन से है फिर? वेजिंग, ब्लास्टिंग, डिगिंग, क्रिएटिंग। तो हम क्या करते हैं? ब्लास्टिंग करते हैं, ब्लास्ट करके उसको रॉक निकालते हैं। ठीक है। डिगिंग किसके लिए यूज करते हैं? सॉफ्ट स्टोन्स के लिए, दैट इज लैटराइट। वेजिंग किसके लिए? सॉफ्ट एंड सर्टिफाइड रॉक्स, दैट इज सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट, मार्बल्स एक्सेट्रा। हीटिंग किसके लिए? थिन एंड रेगुलर रॉक्स, रेगुलर ब्लॉक्स। ग्रेनाइट, ग्नीस कौन सा? हीटिंग ग्रेनाइट के लिए यूज करते हैं। और ब्लास्टिंग कौन सा? हार्ड वाला कॉम्पैक्टेड रॉक विदाउट क्रैक्स वाले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन. हीटिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस फॉर pouring ऑफ stones with hand tools, by utilize compressed air pressure, by the use of channeling machine, by blasting with explosive। ये वाला तो ब्लास्टिंग वाला था ना, ये तो नहीं है। विथ हैंड टूल, हाँ ये है। यूटिलाइज compressed एयर प्रेशर, नहीं ये भी नहीं। और यूजिंग चैनल, ये भी नहीं है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, विथ हैंड टूल्स, pouring ऑफ स्टोन विथ फॉर हीटिंग के लिए। हीटिंग जब करते हैं वो हैंड टूल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. जंपर इज अ टूल यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ स्टोन्स, pouring of stone, dressing of stone, none of the above. So jumper किसके लिए यूज करते हैं? pouring of stone के लिए। वेज, डिपर, टैंपिंग बार, प्रो बार, प्राइमिंग निडल, ये अलग अलग टूल्स बताए। वेज किसके लिए? स्प्लिटिंग रॉक अलोंग नेचुरल रॉक्स, नेचुरल क्रैक्स में स्प्लिट करने के लिए वेजेस यूज करते हैं। डिपर्स, रिमूविंग डेब्रिस फ्रॉम ब्लास्ट होल्स। देन टैंपिंग बार, compacting tamping materials, priming needle, creating detonator cavity, then crowbar, praying and moving stones, मूव करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ गया, crowbar वाला मूविंग स्टोन के लिए यूज करते हैं। In which method of stone dressing is a 20 mm wide margin made along the edges of the stone and irregular sinking about 10 mm wide and 5 mm deep mark in the interior portion? So इसके ऑप्शन क्या है? रेटिकुलेटेड फिनिश, वर्मिकुलेटेड फिनिश, roasted finish, and hammer dressing. So is the correct option, that is reticulated finish। इसमें क्या होता है? नेटवर्क लाइक पैटर्न होता है विथ मार्जिन, इसलिए हम क्या होते हैं? रेटिकुलेटेड फिनिश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन. In which type of dressing of stone are about 1 centimeter vertical or horizontal grooves sunk with a chisel having its shape as a hollow semicircular? Punch dressing, reticulated finish, close pick and fine tuning, और roasted और ड्रो फिनिश। सो इसका क्या होता है? पंच वाला ड्रेसिंग, पंच ड्रेसिंग, जो कि क्या होता है? हॉलो सेमी सर्कुलर चीजें मिक्स ग्रूव्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन. A broad face chisel used for dressing a stone to comparatively smooth surface is called a soapstone chisel, roaster, claw chisel, or fillet chisel. So this is the correct answer. Roaster, जो क्या है? Produces roasted और rolled finishes. ठीक है। Next question. The preparation of the surface of stone to obtain plain edges or to obtain stones of required size and shape is known as coring of stone, blasting of stone, seasoning of stones, dressing of stone। D is the correct option. Dressing उसी को ही हम कहते हैं। ठीक है। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ड्रेसिंग इज डन immediately after coring and before seasoning। Benefits है इसके: reduces weight for transportation, provides pleasing appearance, ensure proper bedding with good mortar joints, creates special shapes for arches, coping pillars, etc. Next question. The polished granite stone will be checked for polish on the surface quality using spinner, gloss meter, smoother और grinder। So this is the correct option, gloss meter, जो कि क्या करता है? चेक करता है for polish on the surface quality। नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका डिस्क्रिप्शन देख लो क्या था।
ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. An industrial towns, stones are preserved by application of which of the following solution? Barta, CaCl2, H2SO4, caustic alphys. Barta solution use करते. Barta solution क्या करता है? Is applied to stone surface for preservation. It reacts with calcium sulfate, that is gypsum, present in many stone to form insoluble barium sulfate. ये इसका फॉर्मूला दिया. ठीक है. ज्यादा डीप जानने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following stone is best suited for construction of piers and abutments of railway bridge? Piers and abutment के लिए कौन सा बेस्ट है? Granite, sandstone, limestone, quartzite. So A is the correct option, that is granite. ठीक है. Granite is best suited for construction of pier, abutment, railway bridges because its high strength and durability. Next question. What is the application of stone block pavement? Stone block pavement का application पूछा. Subbase for important roads, residential streets, harbors, cycle tracks. So C is the correct option. Harbors में यूज किया जाता है. Next question. Which of the following is suitable used for rubble masonry and foundation work? Basalt, gneiss, slate, limestone. क्या कहाँ यूज होता है? कौन सा यूज होता है? Basalt. Basalt is a most suitable used for rubble masonry and foundation work. और बसल्ट की प्रॉपर्टीज क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 to 3, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 150 to 300, इसीलिए स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, इसीलिए यूज किया जाता है. कहाँ कहाँ पे यूज होता है? रबल मैसनरी, फाउंडेशन वर्क, रोड मेटल, कंक्रीट एग्रीगेट्स और रेलवे बलास्ट एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a chemical classification of rock? केमिकल क्लासिफिकेशन में नहीं आता. कौन सा वाला? फोलिएटेड, सिलिसियस, कैलकेरियस, अर्जिलस. ये तीनों की तीनों केमिकल क्लासिफिकेशन है और फोलिएटेड फिजिकल क्लासिफिकेशन है जो कि टेक्सचर पे आता है. टेक्सचर, फिजिकल, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर. ठीक है. जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कौन सा है? इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक. केमिकल कौन सा है? सिलिसियस, कैलकेरियस, अर्जिलेसियस. देन फिजिकल कौन सा? स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फोलिएटेड. जिसमें ये कौन सा था? फोलिएटेड वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन. When the rocks are classified on the basis of physical characteristics, the type of rock that has tendency to split up in a definite direction only is known as. ऑप्शंस क्या क्या है? इग्नियस रॉक, सिलिसियस रॉक, फोलिएटेड रॉक, कैलकेरियस. सो ये सारे ये फीचर्स किसके होते हैं? फोलिएटेड रॉक्स होते हैं. It has a tendency to split up in a definite direction. That is foliated rock. Next question. Among the following, which rock represent a bedded or stratified structure? Sedimentary rock, igneous rock, metamorphic rock, none of the above. क्या होगा इसका? Sedimentary rock. That is the correct option. Represent bedding or stratified structure. Next question. Identify an example of unstratified rock. Unstratified पूछा है, कौन सा है? Sandstone, shell नहीं. Basalt is the correct option. Unstratified पूछा है. सैंडस्टोन स्ट्रेटिफाइड है. स्लेट फोलिएटेड मेटामॉर्फिक है और शेल स्ट्रेटिफाइड है. बसल्ट इज द ओनली ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन इज porphyritic, conglomerate, vesicular, granular, crystalline. So क्या होता है? सैंडस्टोन का डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ग्रैनुलर क्रिस्टलाइन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following texture of rock the arrangement of minerals is in the form of parallel layers? Parallel layers वाला कौन सा होता है? Porphyritic नहीं, foliated हाँ, pisolytic, conglomerate नहीं. This is the correct option. Foliated है. ठीक है. Next question. Shell is compressed and clay, stratified, coarse grain, metamorphic, luminated. So कौन सा होता है? Laminated. Shell is compressed and laminated clay. Is the correct option. Next question. Which of the following is a stratified rock?
कौन सा वाला? स्ट्रैटिफाइड है। मार्बल, ग्रेनाइट, बसाल्ट, ट्रैप। मार्बल, मार्बल इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्रेनाइट कौन सा है? अनस्ट्रैटिफाइड है। बसाल्ट भी अनस्ट्रैटिफाइड है और ट्रैप भी अनस्ट्रैटिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडस्टोन इज। सैंडस्टोन आई थिंक ये देखा था ना, 2.6 पर 9. हाँ, इज द करेक्ट ऑप्शन। नॉर्मल रेंज ही रहती है उसकी, 2.6 to 2.9, 2.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैंडस्टोन कंसिस्ट ऑफ क्वार्टज लाइम, क्वार्टज सिलिका, क्वार्टज लाइम सिलिका, सिलिका लाइम एल्यूमिना। क्या होता है? क्वार्टज लाइम सिलिका सैंडस्टोन के कंस्टिट्यूएंट। क्वार्टज लाइम, सॉरी सैंडस्टोन, क्वार्टज लाइम सिलिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैंडस्टोन इज सेडिमेंटरी रॉक, एक्वियस रॉक। दोनों के दोनों ही है ना? हाँ, बोथ 1 and 2 is the correct option. Next question, which of the following is a sedimentary rock? Sedimentary rock हो जाए limestone, हाँ है। Greenese, granite, dolerite नहीं। limestone is the correct option. Greenese metamorphic है, granite igneous है और dolerite igneous है। Next question, which of the following is an example of metamorphic rock? Metamorphic rock पूछा है, कौन सा है? Sandstone, granite, marble, basalt. Marble is the correct option. 3 is the correct option. Next question, which one is a metamorphic rock? Again metamorphic rock, कौन कौन से? शीट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट। शीट इज द करेक्ट ऑप्शन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following represent a metamorphic rock? स्लेट, शेल, क्वार्टजाइट। कौन कौन से इसमें? स्लेट है, शेल नहीं है, क्वार्टजाइट है। सो 1 and 3 ओनली, 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, शेल सेडिमेंटरी है, इट इज नॉट metamorphic. Next question, which of the following sedimentary rock changes into quartzite by metamorphic action? वो कौन सा वाला क्वार्टरजाइट बन जाता है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, जिप्सम। कौन सा होता है? सैंडस्टोन होता है। क्या होता है? हीट एंड प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिज्म बन जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से? सैंडस्टोन का क्वार्टज होता है, लाइमस्टोन का मार्बल, शेल का स्लेट, स्लेट का फिर लाइट, शीट, ग्नीस ऐसे बन जाते हैं। और ग्रेनाइट का ग्नीस बनता है और डोलोमाइट का मार्बल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बल इज फॉर्म आफ्टर द मेटामॉर्फिसिस ऑफ। मार्बल किससे बनता है? अभी भी देखा ना, लाइमस्टोन। इट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट इज फॉर्म बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। स्लेट, शेल, शेल से स्लेट बनता है। इट इज द करेक्ट ऑप्शन। Granite, which is mainly composed of quartz and feldspar particles, is obtained from metamorphic, igneous, sedimentary, all of the above. Which is the correct option? Igneous. Granite is an igneous rock. Next question. Both granite and basalt belong to and are used as a building stone. Granite and basalt कौन से? ये पूछा है ना। इग्नियस, सेडिमेंटरी, मार्बल। मार्बल ग्रुप कौन सा होता है? मेटामॉर्फिक ग्रुप कौन सा है? ग्रेनाइट वाला। बसाल्ट का, सॉरी ग्रेनाइट का कौन सा था? इग्नियस रॉक, राइट, इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इग्नियस रॉक फ्रॉम फॉलोइंग। इग्नियस रॉक कौन सा? सैंडस्टोन, मार्बल, बसाल्ट, क्वार्ट्ज। इग्नियस कौन सा था? बसाल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंटरी रॉक? सेडिमेंटरी रॉक पूछा है इसमें, कौन सा? मार्बल, क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन, ग्रीन्स इज द करेक्ट ऑप्शन, सैंडस्टोन। जिप्सम इज, जिप्सम क्या है? मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक नहीं, इग्नियस रॉक नहीं, केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंटरी रॉक हाँ, मेटामॉर्फिक नहीं है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटामॉर्फिक रॉक? ग्रेनाइट, बसाल्ट, क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन। कौन सा है? क्वार्टजाइट, विच इज मेड अप ऑफ, कहाँ से बनता है वो? सैंडस्टोन से, क्वार्टज, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटामॉर्फिक रॉक? कितने सारे मेटामॉर्फिक पूछे? लाइमस्टोन, रियोलाइट, शीट, डोलेराइट। मेटामॉर्फिक रॉक पूछा है, कौन सा है?
नहीं है इसमें पोर्टोजोइक शीट. हाँ शीट है ना, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The rocks formed due to cooling of magma at Earth's surface are called. Earth surface वाला कौन सा था? Volcanic rock. Plutonic, deep down, hexagonal, shallow depth. Next question. Rhyolite rock are type of. Rhyolite कौन सा वाला है? Metamorphic, igneous, sedimentary, argillaceous. This is the correct option. Igneous rock, rhyolite. ठीक है. Next question. What are the three primary type of igneous rock based on their occurrence and position in Earth crust? फेल्सिक इंटरमीडिएट मैफिक रॉक नहीं. प्लूटोनिक वोल्केनिक एंड हिप्सोबेजल. हाँ बराबर है. ग्रेनाइट बसल्ट पीरियड नहीं, ये नहीं. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. प्लूटोनिक वोल्केनिक हिप्सोबेजल. अभी भी देखा है ऑलरेडी. आइडेंटिफाई द एसिड टाइप ऑफ इग्नियस रॉक फ्रॉम द बिलो लिस्ट. पेरिडोटाइट, रियोलाइट, गैब्रो, डोलोराइट. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज रियोलाइट. इग्नियस रॉक है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the igneous rock with silica content 60 to 70%. आई थिंक ये क्वेश्चन आया हुआ भी है ज्यादा से ज्यादा, बहुत बार आया हुआ है. कौन सा इसका? गैब्रो, पीरियोडोटाइट, साइनाइट, ग्रेनाइट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. साइनाइट. इसमें क्या होता है? सिलिका कंटेंट 60 to 70% होता है. और बाकी क्या है? हाँ. कौन सा? गैब्रो में कितनी है? 45 to 60%. पीरियोडोटाइट में कितना है? 30 to 45%. और ग्रेनाइट में कितना है? 70 to 80%. ठीक है. सिलिका कौन सा था ये वाला? साइनाइड. which is igneous rock which contains 60 to 70% silica. Next question. Which of the following type of rock exhibits greater crushing strength when compared to other mentioned type of rock? Sandstone, laterite, shale, trap. कौन सा आता है? ट्रैप. इट इज द करेक्ट ऑप्शन. ट्रैप की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है. दैट इज दिखा है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन. हाँ दिखा है. ट्रैप बसाल्ट कितना होता है? 1500 1800 के बीच में. ग्रेनाइट 900 से 2100. स्लेट 700 to 2100. मार्बल 720. सैंडस्टोन 650. लाइमस्टोन 550. लैटराइट सबसे कम होता है 18 to 32. शेल 30 to 80. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट मिनरल अमंग द ऑप्शन? कौन सा वाला हार्डेस्ट है? क्वार्ट्ज, माइका, talc and calcite. So quartz is the correct option. इसका मोर्स हार्डनेस स्केल क्या होता है? 7 होता है. पीछे भी देखा था ऑलरेडी. ठीक है. माइका का कितना है? मोर्स 2.5 to 3. देन टाल्क 1. और कैल्साइट हैज हार्डनेस 3. यहाँ पे दिखा भी है, सबके लिखे 1 टाल्क, 2 जिप्सम, 3 कैल्साइट, 4 फ्लोराइट, एपेटाइट. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे ज्यादा किसका है? डायमंड का. सबसे कम टाल्क. और अपना कौन सा था? क्वार्ट्ज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हार्डनेस एंड टफनेस ऑफ स्टोन टाइल्स इज evaluated with reference to which scale of hardness? That is more scale hardness. मोर स्केल नॉट मोर स्केल. ये कंफ्यूज हो जाते बहुत लोग ए और सी से. मोर्स नहीं होता वो, मोर स्केल होता है. मोर स्केल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ मिनरल्स अरेंज इन मोर स्केल ऑफ हार्डनेस इज. कितना तक है? 10 तक ही देखे था. और सबसे टॉप पे कौन सा था? टाल्क. और सबसे बॉटम में दैट इज 10 हाईएस्ट हार्डनेस दैट इज डायमंड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कार्बोरंडम इज एब्रेसिव स्टोन. कार्बोरंडम पूछा है ना. सरफेसिंग, पॉलिशिंग और रोबस्ट माइंड. इज द करेक्ट ऑप्शन. पॉलिशिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following stone can be used for rough stonework? Rough stonework का पूछा है ना. ग्रेनाइट, मार्बल, चॉक, लैटराइट. कौन सा इसका? लैटराइट. इज द करेक्ट ऑप्शन. Laterite is a sedimentary rock composed mainly of iron, aluminum also, and it's porous, soft, and easy to work with. Laterite is used for rough stone masonry work, that is rubble masonry, and sometimes as a brick substitute in a tropical region. Next question. Which type of rock is used for fire resistant masonry? Fire resistant वाला उसका
fine grain granite, limestone, slate, or compacted sandstone. So D is the correct option. That is compact sandstone. Fire resistant masonry requires stone free from calcium carbonate, oxide of iron, and minerals having different coefficient of thermal expansion. Compact sandstone has better fire resistance than both limestone and granite. ठीक है, next question. The stone is said to be moderately tough if the toughness index of the stone in the impact test is less than 30, between 13 to 19, greater than 19, less than 0. कौन सा वाला पूछ रहा है ये? Moderately tough. तो वो क्या होता है? Between 13 to 19 is the correct option. For road construction, that is 19 से ऊपर चाहिए. हार्डनेस इज रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग. हार्डनेस और टफनेस के बारे में बताए. टफनेस का भी यहाँ पे लिखा है. स्टोन कैन बी हार्ड बट ब्रिटल और सॉफ्टर बट टफ. एग्जाम्पल सैंडस्टोन. ठीक है, उतना ही दिया है इसका, ज्यादा कुछ दिया नहीं. बाकी के नंबर लिखे नहीं. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. The stone attrition value dry test for good quality stone suitable for road material should not be more than. attrition value पूछिए ना. 4%, 3%, 2%, 5%. वो डेवल एट्रिशन टेस्ट में कितना होता है उसका? 2% होता है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The important test to be conducted on a stone used in the docks and harbor is. Docks and harbors वाली पूछिए. कौन सी है? हार्डनेस टेस्ट, वर्केबिलिटी टेस्ट, वेट टेस्ट और टफनेस टेस्ट. सो वेट टेस्ट कर किया जाता है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. किसके लिए? डॉक एंड हार्बर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to IS 1121 Part 1 1974, diameter or lateral dimension, that is, distance between opposite vertical faces, of a test specimen of a stone used for finding its compressive strength shall not be less than. कितना होता है इसका? आई थिंक वो 50 by 50 by 50 ऐसा वाला कुछ होता है. 10 mm, 50 mm, 25 mm and 75 mm. So, be the correct option. 50 mm. तो इसका डायमेंशन कैसा है? Diameter or lateral dimension of a test specimen shall not be less than 50 mm. इधर का भी all sides. Next question. Specimen are cubes of 50 mm side or cylinder 50 mm diameter. ऐसे. Next question. Okay. Bishanpur is famous for what kind of material used in its temple structure? ये बिशनपुर टेम्पल में कौन सा वाला मटेरियल यूज किया था बनाने के लिए? कौन सा है वो? मार्बल, ग्रेनाइट, ब्रिक्स, टेराकोटा. सो टी द करेक्ट ऑप्शन टेराकोटा. टेराकोटा से बनाया गया था वो कहाँ पे? इन मॉडर्न डे बंकुरा डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ जॉ क्रशर? क्या है वो? जॉ क्रशर साइज रिडक्शन इक्विपमेंट है. किसके लिए होता है? ब्रेकिंग, स्लाइसिंग, मैशिंग, ग्राइंडिंग. किसके लिए होता है वो? ब्रेकिंग के लिए यूज करते हैं. जॉ क्रशर, उसमें नाम में ही है ब्रेकिंग, क्रशर, ब्रेकिंग. बराबर. देखो, और कुछ और क्रशर भी दिए. जॉ क्रशर, कॉम्प्रेशन और ट्रेकिंग. ग्रेट ग्रेटरी क्रशर, दैट इज कॉम्प्रेशन. कोन क्रशर, compression of sedimentary or tertiary. Then roll crusher, compression or shear. Impact crusher, impact or breaking. Ball mill, grinding. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a mineral? कौन सा मिनरल है? Augite, granite, basalt, cyanide. These are rocks. Augite is the correct option. So is the correct option. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a rock? कौन सा वाला रॉक है? जिप्सम, ऑगाइट, कैल्साइट, माइका. ये तीनों मिनरल है. जिप्सम इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कंस्टिट्यूएंट फॉर्स इज अप्रॉक्सीमेटली. कितना आता है इसका? 5.65, 1.78, 2.65 डी, 3.8 डी. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज 2.65. नेक्स्ट क्वेश्चन. Good building stone should have which of the following qualities?
यूनिफॉर्म टेक्सचर, स्ट्रेंथ, फायर रेजिस्टेंट, हार्डनेस। आई थिंक ये सारे के सारे चाहिए ना। यूनिफॉर्म टेक्सचर भी क्या, स्ट्रेंथ भी चाहिए, सारे चाहिए, हार्डनेस भी चाहिए, तो ऑल ऑफ द वो है क्या, सी द करेक्ट ऑप्शन। Select the correct statement related to qualities of good building stone. Crushing strength in Newton per mm of diorite is in range of 180 to 185. बराबर है? नहीं नहीं नहीं, 180 टू 185 नहीं तब, वो 80 टू 150 होता है। देन किसका बचा है, लैटराइट का 1.8 टू 3.1 बराबर है, सबसे कम होता है ये। देन ग्नीस 2062 370, ये भी बराबर है, सिर्फ 2 एंड 3 आर करेक्ट, 1 8 ये वाला गलत है, इज द करेक्ट ऑप्शन बोथ। ठीक है, किसका बताया था वो, किसका था वो, डायोराइट, डायोराइट यहाँ पे दिया 80 टू 150, पीछे भी बताया था मैंने ऑलरेडी इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the pressure acting on the stone in stone masonry construction should be along the direction of bedding planes at 45 degree of direction of bedding plane, at 60 degree of the direction of bedding plane, perpendicular to the direction of bedding plane। क्या होता है इसका, perpendicular होता है, जो कि maximum strength provide करता है। It is the correct option. Next question, the rocks formed due to cooling of magma at Earth's surface are called, कौन सा था वो, volcanic rock कह रहा था। Next question, which of the following is not a characteristic of good building stone? हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ चाहिए होती है, लो वाटर एब्जॉर्प्शन चाहिए होती है, हाई पोरोसिटी नहीं चाहिए होती, यूनिफॉर्म टेक्सचर चाहिए होती है, हाई पोरोसिटी कौन सा नहीं है तुझे ना, हाई पोरोसिटी। पोरस ज्यादा रहा तो वो स्ट्रेंथ भी कम देगा। So that's it. Thank you for watching this video. I hope you like this video. Please share, like and share and subscribe to the channel for more saving in MCQs and previous year questions. See you in the next video. Thank you.